Greetings again, everyone. So today we meet again. I hope every one of you is doing well. And I also hope that through these videos, everyone is getting benefited who are associated with the field of law. All those who are pursuing the law course, and all those who are practicing advocates, and definitely for them who are aspiring to become a judicial officer. Because the primary intent that we are keeping behind making the videos is to be communicative to them, so and be of some use to them. And before I begin with today's topic, आपने पढ़ ही लिया होगा. So before I begin with that, I have a certain announcement to be made. On March 11th, we are beginning with our foundation course for English medium judiciary foundation course. And it does not mean that on 11th March we are initiating with the counseling. The counseling is still going on. We are live with the counseling, we are live with the admissions, and the people are taking admissions. So there is a particular discount that we are offering right now, which would not be so in the times to come. So this is the premier opportunity because it is the starting batch. We are going to start with you. So there is a special price that we have kept for the Judiciary Foundation batch for the hybrid model and for the online model. So we are coming in both the formats. We are coming in hybrid, not completely offline. It is offline, come online, and then because it is going to be live also, and then completely online. That means for all those who cannot come to Mukherjee Nagar Center. So the offline batch would be conducted in Mukherjee Nagar Center. It is 707 Mukherjee Nagar. So if anyone of you live around, or if anyone of you is desirous of coming and seeing it one-on-one, then you can have your conversation with the counselors and can see what processes and what all courses are we offering. Right now, the course that we are offering is Judicial Service Foundation batch, which will be in English medium. I have already told you. That is why I'm speaking in English primarily here, so that any one of you could get the knowledge. To repeat it in Hindi, मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च से हम लोग ये बैच शुरू कर रहे हैं. 11 मार्च 2024 से बैच शुरू हो रहा है. दैट मीन्स उस दिन से क्लासेस शुरू हो जाएंगी. अभी जो है आपकी जो प्रक्रिया है एडमिशन की और जो काउंसलिंग की है वो चालू है. तो आप 707 मुखर्जी नगर में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सेंटर पे आके भी काउंसलिंग ले सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज पे आपके पास पैम्फलेट है जहां पर नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर से भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं, और जैसा भी वो गाइड करें उस हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं. 11 मार्च से हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, और हाइब्रिड और ऑनलाइन दोनों मोड्स में होगा. ऑनलाइन मतलब कंप्लीटली ऑनलाइन, जिसमें सिर्फ आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और हाइब्रिड मतलब जिसमें हम आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे और आपको रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी ऐप के थ्रू, जिससे कि आप उसको रिवाइज कर सकें. तो कहीं ना कहीं एट पार है. जो लोग आ सकते हैं सामने बैठ के पढ़ सकते हैं वो ऑफलाइन में आए, और जो लोग नहीं आ सकते या फिर उनको दिल्ली में शिफ्ट होना या फिर एक डिफ़िकल्टी उनके साथ है, तो वो घर बैठे भी ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं. ये तो खैर आप कोरोना के बाद से शुरू हो ही गया है. सब कोई जानते हैं कि ऑनलाइन क्या होता है. और जो फीस रखी गई है वो बहुत ही नॉमिनल है. इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इट्स नॉट इवन एट पार विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो और इंस्टीट्यूट्स में फीस है उतनी ही फीस हमने रखी है. फीस काफ़ी इकोनॉमिक है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, और यू कैन टेक योर एडमिशंस एंड वी आर बिगिनिंग ऑन 11th मार्च. बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आप उस नंबर से संपर्क करिए. जो इंस्टाग्राम का डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का पेज है उसको फॉलो कर लीजिए. उसमें पैम्फलेट्स में नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं और सारी डिटेल्स जान सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद इस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए. द टॉपिक दैट आई हैव चोजन टुडे, जो आज का विषय मैंने चुना है वो एक फिर से केस लॉ है. तो मैं कोई कॉन्सेप्ट टॉक नहीं कर रहा हूँ आज. मैं एक केस लॉ पे चर्चा करूँगा. केस लॉ आप बहुत रेगुलरली पढ़ते हो. जब भी आपका आईपीसी से कुछ ना कुछ लेन देन हो जाता है, तो मतलब जब भी आप आईपीसी पढ़ते हैं और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हैं, तो स्पेशली इस सेक्शन पे लाया जाता है. लेकिन इस सेक्शन को
सिलेबस के लिए डील नहीं किया जाता। मतलब जब भी सिलेबस की बात आती है तो हम इस पर्टिकुलर केस को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिटेल में एनालिसिस नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये पूछा नहीं जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया है। आईपीसी में तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया है, लेकिन चलिए बता देते हैं, सेक्शन 303 आईपीसी, आईपीसी में तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था, लेकिन बीएनएस, जहां तक भारतीय न्याय संहिता का सवाल है, भारतीय न्याय संहिता में इस सेक्शन में तब्दीली ला दी गई है। तब्दीली मतलब जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हटा के उसको ला दिया गया है। उस प्रॉब्लम को लाकर क्या सिचुएशन आई और कैसे वो सही है वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 303 आईपीसी जो था, जिस वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था, उस वजह को मद्देनजर रखते हुए बीएनएस में उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया गया है। वो ऐड क्यों किया है और उसको ऐड करने से क्या फायदा होगा, ये हम इस केस की डिस्कशन होने के बाद ही समझ जाएंगे। जैसे ही आप इस केस का जो सारा ऑब्जर्वेशन है, जो रेशो है, रेशो तो बहुत छोटी सी चीज है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है बहुत बढ़िया है। 19 पेज की जजमेंट है, लेकिन 19 पेज में एक एक पेज अपने आप में इतना इलैबोरेटिव है, इतना इतना एक्सपेंसिव है, कभी कभी हिंदी के वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे होते तो इतना एक्सपेंसिव है, और वो इस गहराई से उसमें बात की गई है, और इतना सटीक है कि आप जब इसका लॉजिक समझेंगे तो लॉजिक से ही आपको पता चल जाएगा कि देखिए जो सोच है सुप्रीम कोर्ट की वो कहां तक जा सकती है, किन किन डायमेंशंस पे बात कर सकती है। क्योंकि हमारी सोच का दायरा तो बड़ा सीमित था जब हम 303 पढ़ते थे, क्योंकि हमें लगता था कि 303 पढ़ते वक्त हमें सिर्फ 302 पे ध्यान देना है। 302 क्या था? मर्डर। 302 में मर्डर को दंडित किया गया था, और सेक्शन 300 में उसको परिभाषित किया गया था। जहां पर मर्डर को दंडित किया गया हो और अगले ही सेक्शन में आप एक ऐसी बात कर रहे हो जिसमें सब्सिक्वेंट पनिशमेंट, मतलब एक बार और अगर आपने मर्डर किया ऐसा कुछ प्रतीत होता दिख रहा हो, तो आप उसको कहीं ना कहीं मर्डर से ही जोड़ देंगे। ज्यादातर जब भी हमने 303 पढ़ा या हमारी डिस्कशन हुई है तो जनरली लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने यही माना है कि 303 जो है 302 के बाद इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये मर्डर और इसमें रिलेटेड है। मतलब 302 और 303 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और 303 को 302 से जोड़ के पढ़ा जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। 303 एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मतलब 302 से एकदम स्वतंत्र था। वो स्वतंत्र मतलब उसका 302 से, सिर्फ 302 से ही लेना देना नहीं था, और भी बहुत सारे सेक्शंस थे जिससे 303 का जुड़ाव था। अभी समझाऊंगा सब, आपको पता चलेगा कि किन किन सेक्शन से इसका जुड़ाव था, लेकिन उन सेक्शंस को मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, जजमेंट में लिखे हैं। ऑल दो जब आप ये जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें वो सारे सेक्शंस दिए गए हैं जिनमें 303 का जुड़ाव है, जिसके साथ 303 पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन जो एक मिथ थी, एक मिथ्या थी कि 302 और 303 को इकट्ठे पढ़ा जाएगा, कम से कम वो तो इस केस में ब्रेक करती। फिर इस केस से जो आपका इंटरप्रिटेशन निकला उसको देखते हुए एक अमेंडमेंट लेके आए और एक टर्म इंसर्ट कर दी बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, जिससे कि 303 का जो इफेक्ट है वो ठीक हो सके, जो 104 में करी आपने। अब जो परिभाषा है मर्डर की वो सेक्शन 100 में, सॉरी, कल्पेबल होमिसाइड की है, जिसमें आपराधिक हत्या जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद 101 में आपका मर्डर डिफाइन किया गया है। मर्डर की अभी जो पनिशमेंट आईपीसी में है वो 302 में है और बीएनएस में 103 में है, और 104 में आपको 303 का प्रभाव दिख जाएगा, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। मॉडिफिकेशन क्या की गई है वो हम केस के बाद देखेंगे, और क्या वो मॉडिफिकेशन ठीक है वो भी समझ में आ जाएगा, और क्या ये मॉडिफिकेशन आनी चाहिए थी ये भी हम देख लेंगे।
आई बात समझ? तो दोनों ही चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन कब? जब आप मीठू सिंह के केस को समझ जाएंगे। मीठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक बड़ा ही विचित्र सा पॉइंट और बड़ा ही विचित्र सा इशू लेके आया। हम छोटा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मीटू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में ये जजमेंट दी गई थी, अप्रैल में 17 या 7 अप्रैल के आसपास ये जजमेंट दी गई थी। इस केस से पहले बच्चन सिंह का केस आ चुका था, वो भी 1983 का ही जजमेंट है। इस केस से पहले बच्चन सिंह का केस आ चुका था। इस केस से पहले मनेका गांधी का केस भी आ चुका था, जिसमें वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर की बात की गई थी। क्योंकि इन केसेस में आए हुए जो रेशोज थे, जो इनके डिसीजंस थे, वो इस केस में कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। बच्चन सिंह तो डायरेक्टली इसमें उठाया गया था। क्यों? क्योंकि रेस्पोंडेंट ये कह रहे थे कि भैया आप इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक ही मत कीजिए। क्यों? क्योंकि 302 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मतलब डेथ एज अ पनिशमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बच्चन सिंह में हो चुकी है। बच्चन सिंह आप भली बात ही जानते हैं। बच्चन सिंह क्या कर रहा था? बच्चन सिंह ने 302 में जो डेथ लिखा हुआ है, जो कैपिटल पनिशमेंट लिखी हुई है, क्या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं, और अगर होनी चाहिए तो कैसे दी जानी चाहिए, मतलब कि कब दी जानी चाहिए, इन सबकी चर्चाएं बच्चन सिंह में हुई। और बच्चन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया साफ साफ कि देखिए, जहां तक मर्डर का सवाल है, 302 का सवाल है, डेथ एज अ पनिशमेंट में हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही वो भी अभी पता चलेगा आपको। हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको दीजिए, लेकिन दीजिए कब? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। अब मैं बच्चन सिंह तो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां पर क्या हुआ वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर इस बात को उठाया जाएगा। तो इसी केस से पहले बच्चन सिंह का केस भी डिसाइड हो चुका था, और मनेका गांधी का केस भी आ चुका था, जिसमें प्रोसीजरल लॉ को, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लेके आ गए। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आने की वजह से आपने जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर की बात करी, दैट इट शुड नॉट बी फैंसीफुल, इट शुड नॉट बी ऑप्रेसिव, इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी। जब भी आप प्रोसीजर बनाएंगे तो ना वो फैंसीफुल हो, ना ऑप्रेसिव हो, और ना आर्बिट्ररी हो। ये 3 वर्ड यूज किए गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय जस्टिस सरकारिया। और वो कैसा प्रोसीजर होना चाहिए? जस्ट भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए, और रीजनेबल भी होना चाहिए। तो जब आप आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात करते हैं, तो वो एनी प्रोसीजर नहीं होगा, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करेगा। और ड्यू प्रोसेस जो यूएस का कॉन्सेप्ट है, जो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, वो ड्यू प्रोसेस किस चीज की बात करता है? कि उसको चेक करिए प्रोसीजर को, कि प्रोसीजर सिर्फ लिखने मात्र से नहीं लागू हो जाएगा। प्रोसीजर सही है कि नहीं, उसको चेक करने का जो पेडिस्टल है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको चेक करेंगे, वो है जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, एंड शुड नॉट बी फैंसीफुल, ऑप्रेसिव और आर्बिट्ररी। यही 6 टर्म यूज किए गए हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए, इसीलिए मैं बार बार इसको आपको चिन्हित कर रहा हूं। यही 6 वर्ड याद रहेंगे तो कल आर्टिकल 21 पे कोई सवाल अगर आपको आएगा तो ये 6 वर्ड आप भली भांति अपने आंसर में लिख सकेंगे। देखिए, उसको डिस्क्राइब करने का तरीका अलग होगा, लेकिन ये टर्म्स को तो आप इधर उधर नहीं कर सकते, तो टर्म्स रटने बहुत जरूरी है कभी कभी। तो ये दोनों केस का जो रिलेशन है वो इस मीठू सिंह के केस से बड़ा मैच करता है। मीठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ था, सबको पता है कि मीठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 303 सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। किन ग्राउंड पे इस 303 को अटैक किया गया था? जब मीठू का केस हुआ तो किन किन आर्टिकल्स पे अटैक किया गया? एक अटैक था आर्टिकल 14 का, और एक अटैक था आर्टिकल 21 का, दैट इट violates or infringes or impinges upon article 14, that is right to equality, in which we talk about anti arbitrariness, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या बिना दिमाग लगाए लिख दिया, क्या कोई इसमें रीजन बनता है, क्या कोई लॉजिक आता है?
क्या इसमें इक्वालिटी बन रही है? क्या अगर इक्वालिटी से अलग एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब एक ऐसा डिफरेंट ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसके लॉजिक है, तो फिर तो ठीक है। नहीं, अगर वो रीजनेबल नहीं है, मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है, तो फिर तो उसको रद्द किया जाए, आर्टिकल 14 की अवमानना मानी जाए। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब ऐसा डिफरेंस, ऐसी भिन्नता जो आपके दिमाग को समझ में आए, जो लॉजिक समझ में आए कि भिन्नता क्यों है, उसका भी टेस्ट है आर्टिकल 14 में, आपको पता है। देयर मस्ट बी नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया टू, जिसका मतलब जिस लिए कानून बना है, अगर उस कानून के बनाने के पीछे जो मंशा थी, अगर उस मंशा को मद्देनजर रखते हुए ये भिन्नता लाई गई है और ये भिन्नता आपको लॉजिकल लग रही है, समझ में आ रही है इस देश के परिवेश में, तब ये भिन्नता सही है, नहीं तो ये भिन्नता गलत है। ये आर्टिकल 14 की अवमानना मानी जाए। और अगर आर्टिकल 14 का इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट पे आपने इसको संविधान के विरुद्ध लिखा है, और संविधान के विरुद्ध हुआ तो हम इसको असंवैधानिक करार कर देते हैं। और कौन से दो आर्टिकल्स पे अटैक किया गया? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 मतलब कि क्यों आपने 303 में, अभी हम पढ़ेंगे 303, क्यों आपने 303 में इन लोगों को भिन्न रखा गया है, क्यों आपने इनको डिफरेंट क्रिएट किया गया है, क्यों आप इन लोगों को औरों से अलग मान रहे हो, क्या है वो अभी हम पता कर रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल 21 प्रोसीजर। प्रोसीजर में दो तीन ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आप 302 में करते हो। जब आप मर्डर देते हो या मर्डर में डेथ पनिशमेंट देते हो, तो आप वो दो चीजें करते हो। वो दो चीजें यहां करने को नहीं मिल रही। किसको? जुडिशरी को, कोर्ट को। तो क्या ये हमारे लिए एक इंफ्रिंजमेंट नहीं है? क्या ये आर्टिकल 14 और 21 की अवमानना नहीं है? अब कोर्ट को यही जानना है। अब ये जानने के लिए जरूरी है कि आप देख तो ले कि 303 कह क्या रहा है, फिर मैं इस बात पे दोबारा आऊंगा। देखिए 303 क्या कहता है, मैं आपके लिए बहुत ही क्विकली इसको पढ़ देता हूं। देखिए 303 कह रहा है आईपीसी का, जो कि अब 104 बीएनएस का है। सेक्शन 303 आईपीसी क्या कहता है? देखिए जो 104 बीएनएस मैंने अभी बताया, सेक्शन 303 आईपीसी प्रोवाइड्स दैट whoever being under sentence of imprisonment of life, whoever being under sentence of imprisonment of life, अच्छा, commits murder, shall be punished with death, shall be punished with death। इतना छोटा सा ये एक प्रोविजन है, एक स्टेटमेंट का प्रोविजन है सिर्फ, ज्यादा कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं है। और कोर्ट ने इतना ब्यूटीफुली इसको इंटरप्रेट किया है। इस प्रॉब्लम को जो हमें इसमें दिखी, आर्टिकल 14 और 21 का जो मानना इसमें दिखी, वो कहां से कंपेयर किया और कैसे इसको 302 से जोड़ते हुए इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया। 302 और 303 का कोई आपस में लेना देना नहीं है। 302 क्या कहता है? Whoever commits murder shall be punished with life imprisonment or death। Whoever commits murder, जो भी 302 की बात कर रहा हूं, 302 कहता है कि जिसने भी मर्डर किया उसको या तो आजीवन कारावास मिलेगा या फिर मृत्यु दंड मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है। मर्डर का मतलब है किसी इंसान की जान ले लेना। कल्पेबल होमिसाइड सबको पता है। कल्पेबल होमिसाइड का ग्रेव फॉर्म ही तो है मर्डर।
जो दंडनीय मानव हत्या होती है उसमें जो बहुत ही निर्मम तरीके से की जाए, मतलब जिसमें मंशा आपकी बड़ी क्लियर हो कि आप मारना ही चाहते थे, या फिर वो 4 तरीके जो लिखे हुए हैं उनमें से कहीं भी फॉल कर जाए तो उसको मर्डर माना जाता है। मतलब ग्रेविटी बढ़ जाए, तो जब मारने में बहुत सारी चीजों की ग्रेविटी बढ़ जाए, एक्टस रियस में ग्रेविटी बढ़ जाए या मेंस रिया में ग्रेविटी बढ़ जाए, तो उन्हीं कल्पेबल होमिसाइड, जो आपके दंडनीय मानव हत्या है या मानव वध है, उन्हीं दंडनीय मानव हत्या को जिसमें मेंसरिया और एक्टस रियस की ग्रेविटी बढ़ जाए, मतलब उसका जो ताप है वो बढ़ जाए, सो टू से, तो क्या माना जाता है कि ये मर्डर हुआ है। और मर्डर क्यों माना जाता है? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड का दंड जो है वो मर्डर से कम है। अगर आप सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए कन्विक्ट होते हैं, दोष सिद्ध होते हैं, तो आप मर्डर के लिए आपकी जो सजा है वो कम है, मर्डर के लिए ज्यादा है। और मर्डर में क्या पनिशमेंट है? 302 में लिखा हुआ है कि अगर आप ये सिद्ध हो गया कि आपने मर्डर किया तो आपको या तो आजीवन कारावास मिलेगा या फिर मृत्यु दंड मिलेगा। मतलब दोनों में से एक चीज तय है, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। आपको सिर्फ कारावास नहीं मिलेगा, जुर्माना भी लगेगा, जुर्माना लेकिन अतिरिक्त है, एडिशनल है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव क्या है? लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड, या फिर मृत्यु दंड। और यहां पे क्या लिखा है? whoever being under sentence of imprisonment of life commits murder shall be punished with death, shall be punished with death, mandatory, punished with death, only punishment। आप सब जानते हैं कि पनिशमेंट जो दंड है वो 5 प्रकार के हैं, अब बीएनएस में 6 प्रकार के हो गए, क्योंकि सामुदायिक सेवा करके, कम्युनिटी सर्विस करके एक पनिशमेंट बढ़ा दी गई। पर वैसे ये आईपीसी में 5 प्रकार के थे। डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट इज वन ऑफ द पनिशमेंट, इंप्रिजनमेंट, फाइन, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये 5 तरीके के दंड हुआ करते थे और अभी भी हैं। खैर, इसमें सिर्फ डेथ ही दिया, और डेथ क्या है? एक्सट्रीम पनिशमेंट दैट यू कैन गिव टू एनीवन एवर। मृत्यु दंड देना आखिरत है, ये तो आपका फाइनल स्टेप है। ऐसा दंड जो कि इंसान की जीवन को ही समाप्त कर दे, ये दंड देने से पहले बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जुडिशरी को देखना पड़ता है। जुडिशियल सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो आप यही तो देखेंगे कि क्या हमें दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं, और क्या दिक्कत आई। खुद देखो, पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। whoever being under sentence of imprisonment of life, जो भी व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए सेंटेंस्ड है, मतलब कि कन्विक्ट हो गया था किसी ऑफेंस पे और उसको अब आजीवन कारावास की सजा दी गई है, और वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अंडर सेंटेंस मतलब, सेंटेंस का मतलब होता है दंड देना। आजीवन कारावास के दंड को भोग रहा है, भुगत चुका है नहीं। अंडर सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, आजीवन कारावास को भोग रहा है, मतलब चल रही है, अभी अभी खत्म नहीं हुई, भुगत नहीं चुका। पहली बात तो यही देख, अगर भुगत चुका होता तो 303 नहीं लगता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में समझी है। अगर भुगत चुका होता तो 303 नहीं लगता, भुगत रहा है तो 303 लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और आजीवन कारावास की सजा भुगतते हुए, मतलब भुगतने का जो पीरियड चल रहा है उस पीरियड में वो मर्डर कर देता है, मर्डर का मतलब 302 में पनिश जो होता है, वो मर्डर कर देता है, तो किसका चार्ज लगना चाहिए उसको? मर्डर अगर हो तो 302 का चार्ज लगना चाहिए ना। अगर किसी ने मर्डर किया, अभी मैंने बताया कि 302 में दंड मिलेगा उसको, लेकिन यहां पर क्या लिख रहे हैं? whoever being under sentence of imprisonment of life commits murder shall be punished with death। अगर
मर्डर किया है तो 302 का चार्ज लगना चाहिए। तो 302 में लिखा है कि शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और डेथ। वहां तो लिखा हुआ है कि या तो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड और जुर्माना, और यहां पे क्या लिख दिया, सिर्फ मृत्युदंड, सिर्फ मृत्युदंड। दैट मीन्स क्या हो गया, शैल बी पनिश्ड विद डेथ, मैंडेटरी कर दिया कि आप उसको मृत्यु की सजा ही देंगे। मैंडेटरी दैट डेथ is the only punishment that you will give to him. He shall die. I am not listening to anything, but he shall die. हम नहीं सुन रहे, इसको मृत्युदंड ही दीजिए, इसको मार दीजिए। पहली बारी जब आप पढ़ेंगे इसको, या मान लीजिए कुछ बार अगर आप पढ़ें बिना किसी और चीज पे ध्यान दिए, जो इस सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, पहली बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बात तो सही है। क्यों? देखिए, पहले आप रिलेट क्या करेंगे, 302 में मर्डर की पनिशमेंट लिखी है और उसके तुरंत बाद ही 303 लिख दिया। एक तो ये जगह गलत थी, जिसके बारे में खैर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला कि प्लेस गलत है, पर जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, ये एज अ स्टूडेंट मुझे भी लगा था कि जगह तो 302 के बाद एकदम 303 लिखा है। इसका मतलब क्या रिलेट होता है, क्या कहानी बनती है कि अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया और उसको आजीवन कारावास की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा भुगतते हुए जब वो भोग रहा था तो उसने फिर से मर्डर कर दिया, तो अब उसको फिर से आजीवन कारावास देके आपको क्या मिल जाएगा, ये व्यक्ति तो रिफॉर्म ही नहीं हो रहा, ये व्यक्ति तो मान ही नहीं रहा। पहले मर्डर करके आया किसी का, आजीवन कारावास लिया, और अब आजीवन कारावास जब भुगत रहा है तो किसी की फिर मृत्यु कर दी, फिर मर्डर कर दिया। इस व्यक्ति को तो अब कंपलसरी डेथ दे दो, अब लाइफ इंप्रिजनमेंट का जो ऑप्शन है वो हटा ही दो। पहली बारी में ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है कि बात तो ये सही है, बात तो ये सही कर रहा है 303 कि अगर वो सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है और मर्डर करे तो उसको सिर्फ मृत्यु सजा दें। और ऐसा लगता भी है कभी कभी कि नहीं नहीं बात तो ठीक है ना, दूसरी बार भी हत्या करके आया तो मार दो, अब कंपलसरी डेथ कर दो। लेकिन फिर से यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। यह प्रॉब्लम जो है वही इस सुप्रीम कोर्ट के केस में डिस्कस की गई, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि डेथ को मैंडेटरी फिर क्यों करना है। मैंडेटरी मतलब कि आवश्यक रूप से आपको मृत्यु दंड ही देना पड़ेगा, ये तो असंवैधानिक लग रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के खिलाफ ही है, ये बच्चन सिंह केस के खिलाफ ही है। जबकि स्टेट ऑफ पंजाब आके बोली कि बच्चन सिंह में जो लिखा हुआ है कि डेथ दे सकते हैं तो फिर आप डेथ दे दीजिए, इसमें प्रॉब्लम कहां है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, देखो मुझे क्या टारगेट करना है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कैसे टारगेट होगा उसकी चर्चा भी बच्चन सिंह केस में की गई है, उसी को यहां पर लाया गया है। और आर्टिकल 14 कैसे टारगेट होगा उसके लिए साफ साफ यहां पर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले कोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले कोर्ट ने यह देखा कि हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यहां पर लिखा है कि जो जो व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा होगा। सबसे पहले कोर्ट ने यह देखा कि मुझे बताइए कि आजीवन कारावास की सजा क्या सिर्फ 302 में मिलती है। तो कोर्ट को पता चला कि 302 ही नहीं, ऐसे 50 और सेक्शंस हैं आईपीसी में। अब बीएनएस में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन 1983 में जब ये जजमेंट आ रही थी तो कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व करके जजमेंट में लिखा भी है। अब देखिए ध्यान कहां जा गया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान 303 302 के साथ जोड़ के नहीं गया, क्योंकि पहली बारी में तो ठीक लगा, दूसरी बार हत्या करे तो इसको मृत्युदंड ही दे दो, पर ऐसा नहीं है। यह सेक्शन 303 बिल्कुल अलग है 302 से। और जब बच्चन सिंह केस को उठाया गया था कि बच्चन सिंह केस में बोल तो दिया कि डेथ सही है, तो डेथ देने में दिक्कत क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि डेथ देने में दिक्कत है, हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ
मृत्युदंड देना, ये कहां तक सही है? ये लिख देना कि सिर्फ मृत्युदंड ही मिलेगी, ये कहां तक सही है? हम तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इसका संवैधानिक होना और असंवैधानिक होना, इसको चेक कर रहे हैं। तो कोर्ट का सबसे पहले ध्यान कहां गया कि पहले तो ये बताओ कि 302 वाली कहानी तो तुमने सुना दी, ये आर्गुमेंट दिया गया था, और कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व भी किया कि अगर ये मर्डर सिर्फ के मर्डर के लिए होता, सिर्फ मर्डर के लिए, अगर यहां पर ये लिखा होता हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हैविंग बीन कन्विक्टेड फॉर मर्डर, अगर ये लिख देते हैविंग बीन कन्विक्टेड फॉर मर्डर, मतलब आजीवन कारावास आप क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि आपने मर्डर किया था, मर्डर के लिए कन्विक्ट हुए थे, और फिर से मर्डर कर देता है, कमिट्स मर्डर अगेन, शैल बी पनिश विद मैंडेटरी डेथ सेंटेंस। फिर भी सोचते कि आप कुछ रिफॉर्म करना चाह रहे हैं या करेक्ट करना चाह रहे हैं, फिर भी जो लॉजिक कोर्ट ने दिया है ना, फिर भी उसके अनुसार वो सही नहीं बैठता। लेकिन वो कह रहे थे कि सिर्फ इस सीमा तक भी आप रखते तब भी हमें समझ में आता, लेकिन यहां तो लिखा है whoever being under sentence of imprisonment of life, जो भी आजीवन कारावास भुगत रहा होगा। सबसे पहली इंक्वायरी कोर्ट ने करी, पहले पता करो कितने सेक्शंस हैं जहां जीवन कारावास लिखा है, तो पता चला 302 के अलावा 50 और सेक्शन है, मतलब टोटल 51 सेक्शन है आईपीसी में जिसमें आजीवन कारावास मिलता है, और भिन्न भिन्न जगहों पे लिखे हुए अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स हैं। कहीं फोर्जरी में है, कहीं डेकॉइटी में है, कहीं रॉबरी में है, कहीं सेडिशन पे है, अलग अलग जगह है। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी है, ऑफेंस ऑफ विद रिलेटेड टू कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प भी है, सिक्कों से रिलेटेड ऑफेंस में भी अगर आप करते हैं, फोर्जरी में भी लाइफ इंप्रिजनमेंट है। ऐसी 50 जगह हैं आईपीसी में 302 के अलावा, मतलब टोटल 51 जहां पर आजीवन कारावास मिलता है। तो जहां भी जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला होगा, अगर वो आजीवन कारावास को भुगतते हुए मर्डर कमिट कर दे तो उसको मृत्युदंड ही मिलेगा। अब कहानी बदल गई, आई बात समझ? इसीलिए 302 और 303 आपस में जुड़े हुए नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी थी, हम सोच रहे थे ऐसा, लेकिन कोर्ट ने तो साफ देखा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा, यहां लिखा है सिर्फ जो आजीवन कारावास बिता रहा हो। इसका मतलब हम इसको 302 से जोड़ के नहीं देख सकते, और दूसरी बात, हमें अब इसको इंडिपेंडेंट सेक्शन मान के ढंग से देखना होगा कि क्या ये सेक्शन असंवैधानिक है कि नहीं, क्या ये आर्टिकल 14 में इंफ्रिंजमेंट कर रहा है कि नहीं। अब आर्टिकल 14 की बात समझ में आ गई कि क्या ये कैटेगरी बनाई गई है, क्यों लाइफ इंप्रिजनमेंट वालों को मर्डर करने पर डेथ देने की एक प्रोविजन बनाई गई है। जब इसके गहराई पे जाने लगे, जब कोर्ट ने रीजन मांगा कि ये क्यों बनाया गया होगा सेक्शन, पता करिए 303 क्यों ऐसा किया गया है कि आप अगर आजीवन कारावास में हैं, भुगत रहे हैं, जेल में बैठे हैं और वहां मर्डर कर दें। आजीवन कारावास होंगे तो आप जेल में ही ना, जेल में बैठा हुआ व्यक्ति मर्डर किसका करेगा, किसकी प्रोटेक्शन के लिए किया होगा? तो पता चला कि ये प्रिजन स्टाफ की प्रोटेक्शन के लिए था। किसकी प्रोटेक्शन के लिए? प्रिजन स्टाफ की प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजन अथॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए। 1860 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा, 1860 में अंग्रेजों का शासन था और प्रिजन स्टाफ पूरे के पूरे अंग्रेज थे। धीरे धीरे बाद में इंडियंस को, लोकल्स को, इंडिजिनस ग्रुप्स को उसमें सम्मिलित किया गया, फौज में या करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस में। पहले तो सिर्फ फॉरेनर्स ही थे ना, तो ये जो अंग्रेज थे, हुक्मरान थे, और जो अंग्रेजी सर्वेंट थे वहां पर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको उनसे ऑर्डर, जो इनमेट्स हैं जो जेल में जाएंगे वो तो आपके लोकल होंगे, अंग्रेज तो जाएगा नहीं, लोकल लोग जेल में होंगे। लोकल लोग अंग्रेज स्टाफ को देख के या फिर अंग्रेजी हुकूमत पे गुस्सा करके कहीं उनको मार ना दें, इसीलिए 303 लाया गया कि आप अगर आजीवन कारावास में हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, अगर आप आजीवन कारावास भोग रहे हैं तो मुझे यह डर है कि कहीं आप प्रिजन स्टाफ का किसी का मर्डर ना कर दें।
आक्रोशित होके या किसी हरासमेंट से उनको मार ना दे। और अगर आपने मार दिया तो हम आपको कंपलसरी डेथ देंगे, मृत्यु दंड आवश्यक हो जाएगी। और शैल बी पनिश विद डेथ, इसमें स्कोप ही कहां बचा है? कोई स्कोप? कोई भी सेक्शन आपको पूरी आईपीसी में 303 के अलावा ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ऑल्टरनेट पनिशमेंट ना दी गई हो। ऑल्टरनेट मतलब या ना लगाया हो, कारावास या जुर्माना या दोनों। कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल की कारावास, 14 साल की कारावास या जुर्माना या दोनों। कंपलसरी कहीं भी नहीं किया हुआ है डेथ को, डेथ की कंपलसरी की बात कर रहे हैं हम, कहीं कंपलसरी नहीं है। और अगर आप जनरली देखेंगे सब ऑल्टरनेट में है, कुछ ना कुछ आपको या में दिया गया है कुछ जगहें छोड़ के, पर वहां भी डिस्क्रेशन है। जब मर्डर करने पर आपको ऑल्टरनेट दे दिया कि आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, तो और तो समझ ही लीजिए ना कि इससे तो कम ही होगा, जिसका भी दंड का कोई अगर स्वरूप देखें तो उससे तो कम ही होगा। तो शैल बी पनिश विद डेथ, ये कितना सही था। ये तो प्रिजन स्टाफ को बचाने के लिए था कि उनको प्रोटेक्शन रहे। और उस वक्त रिफॉर्मेटिव थियोरीज को इतना मानने वाली कोई भी ज्यूरिस्टिक अप्रोच थी नहीं। क्या थी? डेटरेंट क्रिएट करने की, मतलब भय लाने की। इससे भय आता, हाथ मत लगा देना, ये मर गया तो तुमको मृत्यु दंड दे देंगे। इससे भय आता है, इससे रेट्रीब्यूशन आता है। रेट्रीब्यूशन मतलब वेंजेंस, आपने मारा अब हम आपको भी मार ही देंगे, मर्डर किया ना तो हम आपको मार देंगे। और हो क्या रहा है? आजीवन कारावास। अब इसमें एक लॉजिक कोई ये ढूंढे कि आजीवन कारावास में कोई है तभी आप 303 लगा रहे हैं। अगर आपका यही लॉजिक था कि प्रिजन स्टाफ को बचाना है, तो अगर कोई 10 साल की कारावास भी काट रहा हो, 15 साल की कारावास भी काट रहा हो या 1 साल की कारावास भी काट रहा हो, क्या वो प्रिजन स्टाफ को नहीं मार सकता? ऑल्दो इस बात को इस जजमेंट में स्पेसिफिकली नहीं लिखी, ये मैं अपनी तरफ से आपको जो सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक है उसी लॉजिक में एक लॉजिक दे रहा हूं कि अगर कोई 4 साल की सजा काट रहा हो, 1 साल की काट रहा हो, 6 महीने की काट रहा हो, क्या प्रिजन स्टाफ को तब दिक्कत नहीं होगी? अगर मान लीजिए वो 6 महीने में ही आक्रोशित होकर उसको मार दे, तब आप 302 से करेंगे उसका मुकदमा, फिर 303 नहीं आएगा। याद क्यों? क्योंकि 303 में तो आजीवन कारावास भुगत रहा हो ये लिखा है, खाली कारावास तो नहीं लिखा। या तो आप लिखते ओनली इंप्रिजनमेंट, तब तो समझ में आता कि आपको प्रिजन स्टाफ बचाना था। तो पहला जो तर्क दिया गया, जो पहली ऑब्जर्वेशन की गई कि प्रिजन स्टाफ को बचाने वाली थी, कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो अब हमें किसी काम की लग नहीं रही, क्योंकि तब तो फॉरेनर्स थे, समझ में आ गया, अब तो अपने ही लोग हैं। और रिफॉर्मेटिव इरा है, रिफॉर्म मतलब हमें उसके मानसिक दशा को बदलना है, ना कि इंसान को मारकर उसको इस दुनिया से भेज देना है। हमें यह चाहिए कि इनकी मानसिक दशा बदले, ये अपने आप को एक बेहतर इंसान में ढालें, इनकी परिस्थितियों को हम समझें। यह है रिफॉर्म होने की या रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की एक छोटी सी दृष्टांत, एक इलस्ट्रेटिव पोजीशन है। अभी तो मैं पूरा थ्योरी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो क्या ये बात समझ में आई? एक ऑब्जर्वेशन ये और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये, कोर्ट को बल मिल रहा था कि भाई देखिए ये तो हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? आर्टिकल 14 कि क्यों लाइफ इंप्रिजनमेंट वालों को आपने अलग रख दिया औरों से, कि अगर किसी और सजा में होगा तो हम 302 का मुकदमा चलाएंगे मर्डर पे, लेकिन आजीवन कारावास में होगा तो हम मर्डर पे 303 का मुकदमा डाल के उसको डेथ दे देंगे कंपलसरी। क्यों किया आपने ये? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया देखना है ना, कि इनको डिफरेंट क्यों रखा है, क्या उसमें लॉजिक है? क्या आईपीसी के ऑब्जेक्ट में कहीं कनेक्ट हो रहा है ये? क्या कोई ऑब्जेक्ट सॉल्व हो रहा है? उसी के लिए ये एक एक बिंदु, एक एक चर्चा है। फिर रेस्पोंडेंट ने क्या बोला था कि 302 में
डेथ पनिशमेंट को अपहेल्ड कर दिया गया है। किस केस में? बच्चन सिंह केस में। एक एक करके आपको सारे तर्क दिख जाएंगे और कंक्लूजन दिख जाएगा आपकी आंखों के सामने। जजमेंट पढ़ेंगे, आपको हर चीज वहीं साफ साफ सरलता से लिखी हुई दिख जाएगी। खैर, मैं जजमेंट की सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहां डिस्कस कर ही दे रहा हूं। 302 में डेथ पनिशमेंट को बच्चन सिंह केस में अपहेल्ड कर दिया गया था। तो कोर्ट ने कहा ठीक है। तो रिस्पोंडेंट क्या कहता है, स्टेट ऑफ पंजाब, वो कह रहा है कि फिर बात तो सेटल हो गई ना कि डेथ दे सकते हैं पनिशमेंट में सर, तो आपको दिक्कत क्या है? वही तो वो कहा कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आप मिस्टेकन बिलीफ में हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं बच्चन सिंह केस में क्या हुआ है। बच्चन सिंह केस में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि डेथ पनिशमेंट संवैधानिक है। बच्चन सिंह केस में जितनी सारी चर्चाएं हैं वो ये है कि 302 में डेथ की पनिशमेंट ठीक है, वो संवैधानिक है। दोनों में फर्क है। क्या मृत्यु दंड दिया जा सकता है? क्या संविधान में मृत्यु दंड देने के लिए कहीं भी कुछ लिखा है? इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा किस बारे में हुई थी बच्चन सिंह केस में? कि क्या 302 मर्डर के केस में डेथ पनिशमेंट देना सही है कि गलत, संवैधानिक है कि अनसंवैधानिक। वहां पर यह बोल दिया कि संवैधानिक है, और उसके 3 मुख्य कारण बच्चन सिंह केस में बताए गए थे। ये क्या 3 मुख्य कारण थे? पहला मुख्य कारण था कि डेथ, जो मृत्यु दंड है, वो एक ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव मतलब वो लाइफ इंप्रिजनमेंट का ऑल्टरनेटिव है। आजीवन कारावास उसका नॉर्मल पनिशमेंट है। जब वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में चला जाए तब मृत्यु दंड उसका एक ऑल्टरनेट पनिशमेंट है। मतलब तब आप मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड जो है वो सिर्फ मृत्यु दंड एक दंड नहीं है। दूसरा, वो नॉर्मल दंड नहीं है। नॉर्मल मतलब संभवतः नहीं दी जानी चाहिए। वो कब दी जानी चाहिए? जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लगे, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कोई ऐसा केस आएगा, जैसे कि आतंकवाद, जैसे कि आप मान लीजिए घर में किसी को आग लगा दी, तंदूर में जला दिया, काट के पीसेस पन्नी में डाल के कहीं नदी में फेंकाए, जो ब्रूटल किलिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे चीजें देखी जाएंगी। उसमें बहुत सारे एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। आई बात समझ? डेथ एज एन ऑल्टरनेटिव, and death as an alternative can be given only in rarest of rare case. And how to find out rarest of the rare case? For that you have several mitigating and aggravating factors. Mitigating factors such as age, sex, motive, gravity, background of accused and so on. बहुत सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं। 60 साल की उम्र का कोई व्यक्ति अगर मर्डर करे तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे? क्यों देंगे? कोई बीमार हो गया है मर्डर करने के बाद, आप उसको क्या मृत्यु दंड देंगे? कोई बच्चा है, 18 साल 19 साल का व्यक्ति है, आप उसको क्या मृत्यु दंड देंगे? तो बहुत सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं। मिटिगेटिंग मतलब जो आपको डेथ एज अ पनिशमेंट देने से रोकें, और बहुत सारे एग्रेवेटिंग फैक्टर्स भी हैं, मतलब जो आपको डेथ एज अ पनिशमेंट, मृत्यु दंड देने से बढ़ावा दे, मृत्यु दंड देने के लिए बढ़ावा दे। तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स रोकते हैं, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये कब करोगे? जब आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन को डिस्कस करोगे कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आ रहा है कि नहीं, और ये ऑल्टरनेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉर्मल पनिशमेंट है वो क्या है? नॉर्मल मतलब जो रेगुलर यूजुअल पनिशमेंट है वो है लाइफ इंप्रिजनमेंट।
लाइफ इंप्रिजनमेंट ही दी जाना चाहिए, डेथ नहीं देनी चाहिए रेगुलरली। डेथ कब देनी चाहिए? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो ये कौन पता करेगा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ रहा है कि नहीं? ये सारे फैक्टर्स कौन चेक करेगा? ये चेक करेगी कोर्ट, जुडिशरी। कौन चेक करेगा जी? ये चेक करेगी कोर्ट। ये काम किसका है? ये तो जुडिशरी का काम है, कोर्ट चेक करेगी। ठीक है, और कोर्ट के लिए एक और हिदायत दी गई है, बड़ा ही अच्छा सेक्शन है 354(3), सेक्शन 354(3) ऑफ सीआरपीसी 1973। बीएनएसएस की बात नहीं कर रहे, मैं क्विकली आपके लिए पढ़ देता हूं। When the conviction is for an offense punishable with death or in the alternative with imprisonment for a term of years, the judgment shall state the reasons for the sentence awarded, and in the case of sentence of death, the special reasons for such sentence. If death is to be awarded, special reasons be stated. अगर आप किसी को मृत्यु दंड देते हैं तो उसके लिए विशेष कारण लिखिए, स्पेशल रीजंस बी स्टेटेड। स्पेशल रीजन, क्या विशेषताएं हैं जो आप उसको दंड दे रहे हैं, और वो विशेषताएं कहां आएंगी? अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आपके ज्यादा हुए, मिटिगेटिंग फैक्टर्स कम हुए, तो विशेष कारण बन सकता है। तो आप ये खंगालेंगे तभी तो आप विशेष कारण लिख पाएंगे, और तभी तो प्रोसीजर में ये समझ में आएगा कि आपने डेथ क्यों दिया, मृत्यु दंड क्यों दी, क्यों इसको मारने का आपने ऑर्डर दे दिया। ये क्या है? प्रोसीजरल चेक है, ये प्रोसीजरल चेक है। प्रक्रिया में ये करना बड़ा जरूरी है, तभी तो लिखा गया है 354(3) में। और एक और बड़ा अच्छा सेक्शन है 235(2) ऑफ सीआरपीसी 1973। ये क्या कहता है? Accused be heard on sentencing. Accused be heard on sentencing. ये तीनों बातों को बच्चन सिंह केस में मद्देनजर रखते हुए यह कहा गया था कि डेथ को रहने दो। 302 में डेथ एज अ पनिशमेंट, मृत्यु दंड रहने दो। और हमें क्या चेक करना है कि क्या 303 में इनमें से कोई भी बात हो रही है? आपके सामने आएगा सबको। देखिए, एक्यूज शैल बी गिवन द हियरिंग ऑन सेंटेंस, क्या मतलब है कि क्या हम आरोपी को, दोषी को सुने ना कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाए कि नहीं, बिना सुने उसको मृत्युदंड दे दें? उसकी कोई अपनी जीवन या कोई जीवन याचना नहीं है क्या? कोई उसको कोई सफाई नहीं देनी? उसको आप कभी नहीं समझोगे, वो आपके देश का नागरिक है ही नहीं, या मान लीजिए वो इंसान ही नहीं है, उसके जीवन जीने का कोई हक नहीं है। वो चाहता है बताना कि वो किस परिस्थिति में था, तो उसको सुने बगैर अगर आप मृत्युदंड दे दें तो आप अन्याय कर रहे हैं। इट इज नॉट फेयर। नेचुरल जस्टिस भी नहीं है। नेचुरल जस्टिस तो प्रोसीजर का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बगैर, जिसको आप प्राकृतिक न्याय बोलते हैं, प्राकृतिक न्याय ऐसा अभिन्न अंग है आर्टिकल 21 का, जिसके बगैर अगर आपने प्रोसीजर बनाया तो वैसे ही वो प्रोसीजर ऑन द फेस ऑफ इट अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब असंवैधानिक है। तो जरा देखिए 235(2) सीआरपीसी में भी लिखा है एक्यूज बी हर्ड ऑन सेंटेंसिंग। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि समझिए 302 में डेथ को जब आपने अपहेल्ड किया गया था तो इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए कहा था। क्या ये तीनों बातें 303 में हैं? चेक कर लो। अब क्या बचा? Whoever being under sentence of imprisonment of life commits murder shall be punished with death. क्या कोई ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट है? नहीं। पहला बिंदु ही खत्म, सिर्फ डेथ, ओनली डेथ। तो कोई ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट? डेथ इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट हियर। डेथ इज द ओनली पनिशमेंट, कंपल्सरी पनिशमेंट। मृत्युदंड तो यहां पर आवश्यक कर दिया गया है, अनिवार्य हो गया है। तो पहला पॉइंट गया।
दूसरा पॉइंट, क्या यहां पर ये जो आप 354(3) की स्पेशल रीजंस की बात कर रहे थे, क्या वो स्पेशल रीजंस दिए जाएंगे यहां पर? अब बात बताइए, जब ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट है ही नहीं, जब इसको दिए जाने के पीछे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप यहां पर क्या डिस्कशंस करेंगे स्पेशल रीजन की? वो एग्रेवेटिंग फैक्टर, मिटिगेटिंग फैक्टर देखने का मौका ही कहां मिला? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझिएगा कि मुझे इसको मृत्युदंड ही देना है, ये तो कंपलसरी हो गया, लेजिस्लेटिव कमांड हो गई। अब इसमें जुडिशरी क्या करेगी? अगर ये प्रूव हो गया कि इसने मर्डर किया है, दोष सिद्ध हो गया, कन्विक्ट हो गया वो, तो अब मुझे बताइए कि जब इसमें कोई ऑल्टरनेट पनिशमेंट ही नहीं है, तो नॉर्मली हो या एक्सेप्शनली हो, देने तो मुझे मृत्युदंड ही है, तो मैं क्या स्पेशल रीजन लिखूं कि दंड देना चाहिए कि नहीं मृत्यु का? क्या स्पेशल रीजन लिखूं देने से पहले, जब वो ऑल्टरनेटिव में नहीं है? तो 354(3) गया। इसका मतलब स्पेशल रीजन देने का भी आपका कोई औचित्य नहीं बनता। तीसरी बात, क्या उसको सुना जाए? सुन लो, आप उसको बुला के सुनो। सुनना किस चीज पे है? टू बी हियरिंग ऑन सेंटेंस मीन्स टू हियर दैट व्हाट शुड बी द सेंटेंस, दैट मीन्स कि क्या दंड होना चाहिए, यही तो सुनवाई है। अगर दंड ही एक है तो उसको सुन के भी क्या फायदा? अगर वो बोल भी दे कि मालिक हमसे तो ये हो गया था, हमें दंड मृत्युदंड ना दिया जाए, ठीक है भाई, मृत्युदंड नहीं देते तो फिर क्या दें? अगर मृत्युदंड नहीं देने की आपकी मंशा है तो फिर क्या देना है इसको? क्या दें इसको फिर बताइए? तो कोर्ट कह रही है हमने तो घेर दिया। इसका मतलब कोर्ट का सारा जो दायित्व होता है, क्या दायित्व है? डिस्क्रेशनरी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। मतलब किसी भी चीज को करने में कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस आपने छीन लिए खाली यहां पर डेथ लिख के। इसको ऑल्टरनेट में कर देते, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ कर देते, तो हमारे लिए तीनों चीजें बच्चन सिंह वाली आ जाती। पहली ऑल्टरनेट, दूसरी 354(3 और तीसरी ये आपका 335(2। ये तीनों चीजें आ जाती है हमारे पास और इनका काम भी रहता। अब जैसे ही आपने इसको कंपलसरी कर दिया तो ना तो ऑल्टरनेटिव बचा, ना ही स्पेशल रीजन देने के लिए बचे, और ना ही तीसरा पॉइंट कि उसको सेंटेंसिंग पे हियरिंग देने का कोई कारण बचा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो डिफरेंशिएशन आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट वालों के लिए किया, ये कितना सही है? तो बच्चन सिंह केस जिस हिसाब से किया गया था, इसमें से कुछ भी 303 में नहीं है डेथ पनिशमेंट देने के लिए। देखो आपके सामने है, सारी चर्चाएं मिलेंगी आपको, पर आप यहीं देख लीजिए कि 302 बच्चन सिंह क्या था और 303 मीठू सिंह में क्या है। क्लियर हुई? तो क्यों ना हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें? क्यों? क्योंकि अब कोर्ट क्या कंक्लूड कर रही है, सोचिए। रेशो क्या है? ये तो ऑब्जर्वेशन थी। रेशो क्या है? रेशो ये है कि कोर्ट को आपने क्या बना के रख दिया? कोर्ट को आपने यहां पर इस सेक्शन में कठपुतली बना दिया। कठपुतली मतलब कि अब ये एक लेजिस्लेटिव कमांड है और कोर्ट अपना कोई दिमाग ना लगाए। सिर्फ दिमाग कहां लगेगा? ट्रायल में, कि भैया अगर दोष सिद्ध हो रहा है कि नहीं। दोष सिद्ध होते ही कोर्ट को इसके बाद कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं क्यों दंड दिया जा रहा है मृत्यु का। ना उसको सुन रहे हैं, ना कोई जरूरत है, क्योंकि अब डेथ ही दी जाएगी, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। कोर्ट को सिर्फ ये लेजिस्लेटिव कमांड माननी है और कुछ नहीं करना। तो आपने कोर्ट को इस सिचुएशन में असमंजस में डाल दिया। कोर्ट की जो प्राइमरी टास्क है डिस्क्रेशनरी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, मतलब जहां जहां डिस्क्रेशन होना चाहिए, न्याय तो तभी होगा ना जब आप डिस्क्रेशन देंगे। अगर मैं उसकी परिस्थिति ना देखूं, अगर मैं उसका मोटिव ना देखूं, और कोर्ट ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए। कोर्ट ने कहा कि एक बात बताओ, अगर वो व्यक्ति जो आजीवन कारावास में है, वो रोज कोई ना कोई उत्पीड़न झेलता है प्रिजन स्टाफ से, उसकी बीवी को भी बुरा भला बोला जाता है, उसकी चैस्टिटी मतलब उसके चरित्र पर
आक्रमण किया जाता है, तो क्या वो उग्र नहीं होगा? क्या वो प्रोवोक नहीं होगा? क्या उसको उकसाया नहीं जा रहा है? और अगर वो उकसाया गया है और फिर वो फिर वो मृत्यु करता है, तो प्रोवोकेशन पे जो मृत्यु होती है, प्रोवोकेशन पे जो मर्डर होता है, अगर वो ग्रेव एंड सडन हुआ तो वो मर्डर नहीं, दंडनीय मानव हत्या हो जाएगी। तो क्या फिर भी हम ये सेक्शन लगाएं? क्या आपको ये परिस्थिति नहीं समझनी? आई बात समझ? मतलब क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स नहीं देखने? क्या उसकी परिस्थितियां नहीं देखनी? फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ एवरी केस ये बिल्कुल साइड कर दें? फिर एक और एग्जांपल दिया कि मान लीजिए 3 परिस्थितियां बनती हैं। पहली परिस्थिति, इन द जेल, आउट ऑफ जेल एंड अंडरगॉन पनिशमेंट, अंडरगॉन लाइफ इंप्रिजनमेंट। 3 परिस्थितियां बनती हैं। क्या इन तीनों में कोई फर्क है? देखो बड़ा अच्छा लॉजिक है। वो कह रहे हैं कि अगर वो जेल में है और तब किसी का मर्डर कर दे, अब भले ही वो प्रिजन स्टाफ हो या इनमेट हो, इनमेट मतलब जो उसके कैदी साथ में रहते हैं, इनमेट्स बोलते हैं उनको, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो जेल में है और किसी की मृत्यु कर दे, मतलब किसी की हत्या कर दे, तो आप उसको मृत्यु दंड दे देंगे। अब मान लीजिए वो जेल से बाहर है, पैरोल या बेल पे, और बाहर गया, पैरोल और बेल आपको पता ही है, तो जेल से बाहर है पैरोल या बेल पे, अब बाहर गया तो उसकी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट तो चली रही है। अब बाहर जाके उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें वो कुछ और नहीं बस हत्या ही कर सकता था या कर दिया उसने उस परिस्थिति में, तो क्या वो बाहर जाके जो उसके सामने परिस्थितियां आएंगी उन परिस्थितियों पे हम ध्यान ना दें? मान लीजिए, फिर से एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि वो बाहर है और बाहर गया और उसको पता चला कि उसकी पत्नी के साथ किसी के अवैध संबंध है या उसने ऐसा किसी को पाया, तो उस प्रोवोकेशन में अगर वो किया या किसी ने उसको उकसाया, अगर उस प्रोवोकेशन में उसने कुछ किया या हत्या कर दी, तो क्या हम उसकी परिस्थिति ना समझें? और तीसरा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने आजीवन कारावास की सजा किसी को मिली थी, उसको कम्यूटेशन मिल गया और 14 साल के बाद वो जेल से बाहर आ गया, इसका मतलब वो अब अपनी सजा काट चुका है, अंडरगॉन लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब वो अंडर दी सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है, अब वो अपनी सजा काट चुका है। तो अगर वो अपनी सजा काट चुका है और इसके बाद मृत्यु करे, तो क्या ये व्यक्ति जिसको कम्यूटेशन से एक बेनिफिट मिल गया, ये कोई अलग हो गया इन लोगों से? ये इनकी गलती है कि ये अभी भी सजा काट रहे हैं और वो सजा काट के निकल चुका है? उसको भी तो आजीवन कारावास ही मिला था, इनको भी आजीवन कारावास ही मिला है, क्योंकि वो काट चुका है अपनी आजीवन कारावास की अवधि, जो कि कम करके 14 साल कर दी गई सरकार द्वारा। तो इसमें इनकी क्या गलती है जो जेल में है, और या फिर जो बीच बीच में जेल से जाते हैं और उनके सामने कुछ विषम परिस्थितियां आ जाती हैं और वो हत्या कर देते हैं? क्या डिफरेंशिएशन है इनमें? और क्यों इस आदमी को आपने बिल्कुल गऊ मान लिया? मान लीजिए ये व्यक्ति जिसने अपनी आजीवन कारावास की अवधि काट ली है, ये मर्डर करके आया हो, ये मर्डर करके आया था, आजीवन कारावास की अवधि काट ली, बाहर आया, फिर मर्डर कर दिया, फिर आप 302 लगा रहे हैं, फिर 303 नहीं लगा रहे। अगर आपको रिफॉर्म ही करना था तो ये कह सकते थे कि भैया मर्डर करके मर्डर कर दिया तो अब आपको हम मार ही देंगे, लेकिन यहां तो नहीं हो रहा ऐसा। तो जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया आर्टिकल 14 है कि क्या नेक्सस है, क्या ऑब्जेक्ट है आपका, भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो रीजनेबल तो नहीं है, इंटेलिजिबल तो नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि आपने ये क्यों किया।
और जब समझ ना आ रहा हो इसका मतलब डिफरेंशिया जो भिन्नता है वो इंटेलिजिबल नहीं है। तो आर्टिकल 14 का खनन तो आपके सामने, साफ साफ आर्टिकल 14 की इंफ्रिंजमेंट है। देखिए क्या लॉजिक है, और बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक। क्या भाई ये अलग क्यों है? कभी कभी किसी को अनकंडीशनल रेमिशन मिल जाती है या कंडीशनल रेमिशन मिल जाती है। कोर्ट ने उस चीज को भी देखा कि अगर अनकंडीशनल रेमिशन मिली तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तो खत्म हो गई, और कंडीशनल मिली तो चल रही है, पर मिली तो रेमिशन है, वो तो बाहर है, और अगर वो तब हत्या कर दे तो आप उसको मृत्युदंड दे देंगे, लेकिन दूसरे वाला जो अनकंडीशनल है उसको मृत्युदंड नहीं देंगे। एक और छोटी सी ऑब्जर्वेशन इसमें ये करी सुप्रीम कोर्ट ने, पर बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखिए क्या फर्क कर रहे हैं आप, किसका फर्क कर रहे हैं, क्या मिला आपको इससे? और एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि अगर मान लीजिए फोर्जरी करके कोई, फोर्जरी में भी एक सेक्शन है जहां लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलता है, आजीवन कारावास मिलता है, उन्होंने कहा कि फोर्जरी करके कोई अगर आजीवन कारावास को प्राप्त करता है और फिर उसके बाद वो मर्डर करता है और उसके बाद आप उसको डेथ ही दे रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि मर्डर और फोर्जरी इन दोनों क्राइम्स के बीच में क्या रिलेशन है? ये पहला जो क्राइम है ये किसी और विषय पे, किसी और सब्जेक्ट मैटर पे, किसी और मनोस्थिति से किया जाता है, ये कार्य बिल्कुल भिन्न है, इसका मर्डर से क्या लेना देना? अगर वही जो बात मैंने पहले कही थी, अगर यहां पर मर्डर होता तब तो समझ में आ रहा है कि मर्डर करके आए हो, आजीवन कारावास में हो, फिर मर्डर कर दिया, फिर भी हम सोचते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। लेकिन एक बात बताइए, कोई फोर्जरी करके आया है, मतलब डॉक्यूमेंट गलत बना के आया है, उससे उसको आजीवन कारावास मिल गया बेचारे को, क्योंकि उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फोर्ज किया होगा। अब उसके बाद उसने मर्डर कर दिया आजीवन कारावास के दौरान, अब आप कह रहे हैं कि इसको दंड, इसको तो मृत्यु दे दो। अरे भाई वो मर्डर जो कर रहा है और जो बाहर कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है जिसपे आप 302 का मुकदमा चलाएंगे, इनमें क्या फर्क कर दिया आपने? ये व्यक्ति जो मर्डर है ये कंप्लीटली डिफरेंट ऑफेंस है जो करके आके आजीवन कारावास ले रहा है। फोर्जरी और मर्डर का कोई रिलेशन नहीं आपस में, ये अलग मोटिव से किया गया होता है, ये अलग मोटिव से किया गया है, उसकी परिस्थितियां अलग थी, इसकी परिस्थितियां अलग है। क्या हम उन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देंगे? आप कैसे इन लोगों को जो आजीवन कारावास में हैं और वो उनको मृत्युदंड दे रहे हैं, कैसे इन लोगों को और लोगों से भिन्न रख रहे हैं? तो क्या हो रहा है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया खराब हो रहा है। तो आर्टिकल 14 का इंफ्रिंजमेंट भली बात है, साफ दिख रहा है। और आर्टिकल 14 का इंफ्रिंजमेंट तो यहीं से आ गया, जितनी बातें मैंने आपको अभी ऑब्जर्व करके बताई। और आर्टिकल 21 का इंफ्रिंजमेंट यहां से आ रहा है। प्रोसीजर में दिक्कत आ गई है सर, ना हम सुन पा रहे हैं, ये फेयर नहीं है, ना हम उसको सेंटेंसिंग पे सुन पा रहे हैं और ना ही हम कोई स्पेशल रीजन दे पा रहे हैं, मतलब ना हम परिस्थितियों का जांच कर रहे हैं और ना ही हम उसकी कोई बात सुनने को तैयार हैं, क्योंकि इन दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाता, इनफ्रक्चुअस है, कोई फल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेथ ही देना है, बस बात ही खत्म हो, मृत्युदंड देना, तो अब सुन के भी क्या कर लेंगे? तो सर ऐसा है, अगर ऑल्टरनेट में होता तो हम ये तीनों चीजें ले आते, तो बच्चन सिंह केस के रूलिंग के हिसाब से सब ठीक रहता। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 303 जो है ये असंवैधानिक है। कोर्ट ने इस केस में जो लाइफ इंप्रिजनमेंट भोग रहे होते हैं उनकी मनोदशा को भी डिस्कस करने के कुछ इलस्ट्रेशंस दी हैं। 2-3 बुक्स हैं जिनका हवाला इन्होंने लिया है, कुछ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनका हवाला लिया गया है। 35th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1967, मैं बस लिख देता हूं, आप खुद से देख लीजिएगा। 36th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी 35th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और 35th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1967, 35th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया
वहां भी ऑब्जर्व किया गया था कि देखिए 303 जो है थोड़ा ड्रैकोनियन है, ड्रैकोनियन मतलब भयावह है, कुछ तो गलतियां हैं, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि इसको हटा दो। फिर एक और बार 42nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 42nd रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी 1971, 42nd रिपोर्ट में भी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के 42nd रिपोर्ट में भी ये बोला कि इसको कहीं ना कहीं एब्रिज कर दीजिए, क्योंकि ये सेक्शन न्याय नहीं कर पा रहा है। They suggested about restricting section to those cases in which life convicts are actually in prison. उन्होंने जो सजेशन दिया वो ये था कि जो जेल में हैं एक्चुअली इन प्रिजन, जो जेल से बाहर हैं या जा चुके हैं उनके लिए नहीं, जो एक्चुअली इन प्रिजन, जिससे कि प्रिजन अथॉरिटीज पे प्रोटेक्शन रहे, जो जेल में हैं ये उन्हीं तक सीमित कर दीजिए। फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये तो बड़ा रेयरली अप्लाई होगा, बड़े एक्सेप्शनल केसेस में, और अगर रेयरली अप्लाई हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, अगर हो भी गया, मृत्युदंड आ भी गया, तो गवर्नर या प्रेसिडेंट से गुहार लगा के इनको छुड़वा लेंगे, मर्सी पिटिशन देके, ऐसा सजेशन देके छोड़ दिया। फिर एक और मौका आया जब 1972 में, 1972 में ये बिल, आईपीसी की अमेंडमेंट का बिल आया, और उसमें एक सेक्शन ये था कि हम 303 को रद्द कर देंगे, हटा देंगे, रिपील कर देंगे। पार्लियामेंट में भी 1972 में यह बिल लाया गया था कि हम आईपीसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, और उसमें एक प्रावधान यह था कि 303 को हटा दीजिए। पर मिड टर्म इलेक्शंस हुए, सरकार बदल गई और बिल लैप्स हो गया। उसके बाद कभी इस बात को उठाया नहीं गया। कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई हमारे हाथों ही होना था, इसलिए अभी हमारे सामने आ गया। तो इसका असंवैधानिक होने का कारण बिल्कुल स्पष्ट और साफ था, आर्टिकल 1421 की डायरेक्ट इंफ्रिंजमेंट थी। इतने अच्छे से तो ऑब्जर्व कर लिया, और क्या चाहिए था। और बच्चन सिंह केस में क्या चीज थी ये भी समझ में आ गया, बच्चन सिंह केस का क्रक्स भी समझ में आ गया हमें। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 3 मुख्य कारण क्या थे कि उनको डेथ अपहेल्ड करना पड़ा, और क्यों ये आपस में रिलेटेड नहीं है ये भी समझ में आ गया। अब बीएनएस में इसका क्या प्रारूप है, देखिए क्या उससे कोई सॉल्व हो रहा है। बीएनएस में 104 में क्या लिखा गया है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो आपका अब 2023 में आया है, जो नया एक्ट आपका आया है, बीएनएस में सेक्शन नंबर 104 में 303 आईपीसी का एक स्वरूप है और उसमें मॉडिफिकेशन है। 303 अगर आपको समझ में आ गया है तो 104 अभी आपको समझ में आएगा। Whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder, वो नहीं बदला जो बदलना चाहिए था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट, अंडर लाइफ इंप्रिजनमेंट ही क्यों, जिनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट ओवर हो चुकी है उसको क्यों नहीं, वो तो अभी भी एड्रेस नहीं हुआ। और इन जेल या आउट ऑफ जेल, इसको भी एड्रेस नहीं किया, बिल्कुल सेम वही लिख दिया जो 303 में था। Whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death or with imprisonment for life. पहले डेथ और फिर imprisonment for life, which shall mean the remainder of that person's natural life. इसका मतलब बस किया क्या, ऑल्टरनेट पनिशमेंट ले आए। ऑल्टरनेट पनिशमेंट लाने से क्या हुआ, ये आपके सामने ऑल्टरनेट पनिशमेंट आया, तो अब आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पे जाएंगे, फिर ये चर्चाएं करेंगे, ये चर्चाएं करेंगे तो स्पेशल रीजंस दे पाएंगे, स्पेशल रीजंस देंगे तो एक्यूज को भी सेंटेंसिंग पे सुन पाएंगे। जब कर ही लेंगे ये तीनों बातें तो बच्चन सिंह केस के इक्विवेलेंट हो गया। बड़ा स्मार्ट प्ले कर दिया सरकार ने। तो संसद ने क्या स्मार्टनेस दिखाई कि बच्चन सिंह केस जिन रीजंस पे, जिन ऑब्जर्वेशंस पे जो मेन प्रॉब्लम्स थी उन पे एड्रेस करके क्या किया, बस ऑल्टरनेटिव कर दिया। ऑल्टरनेटिव करते ही सारा सोल्यूशन आ गया ये वाला, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि आर्टिकल 14 का इंफ्रिंजमेंट है। पर 2 बातें अभी भी प्रॉब्लम में है कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट गुजार चुके हैं उनको क्यों अलग रखा जा रहा है। क्या वो बड़े सुधरे हुए लोग हो गए, जब ऑलरेडी आजीवन कारावास कम्यूट ही तो हुआ। अदरवाइज आजीवन कारावास का मतलब कि वो जीवन भर कारावास में रहेंगे। अब आपने कम्यूट करके, मतलब उनकी सजा को बदल के
कम कर दी और 14 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया, ये तो एक बेनिफिट मिला है उनको। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कारावास की अवधि जो है आपने कम करके उनको दोष मुक्त कर दिया, पर होता यही है कि 14 साल के बाद अगर छोड़ दिया तो आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट खत्म है। अब आप मर्डर करेंगे तो आप 302 के मुकदमे में जाएंगे। लेकिन अगर आजीवन कारावास चल रही होती, मतलब जब तक आप कारावास में हैं आजीवन, तब तक आप मर्डर ना करें, नहीं तो आपको डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट फिर मिल जाएगी। अब ऑल्टरनेट कर दिया। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको प्रिजन स्टाफ ही बचाना है तो जो दूसरे इंप्रिजनमेंट्स में हैं उनके लिए भी तो ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट वालों के लिए ही क्यों? तो कुछ बातें अभी भी करी जा सकती हैं, चर्चा का विषय बन सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये अमेंडमेंट लाके उन्होंने जो मेन रीजंस था, ये जो मेन रीजन है, ये जो मेन ऑब्जर्वेशन थी, इसको टेक केयर कर लिया और जो इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी इसको दूर करने की कोशिश पूरी करी इस केस की समझ के अनुसार। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल एंटायर केस प्रॉपर्ली। ये पूरा केस समझ में आया हो, पढ़ के देखिएगा, 19 या 20 पेज का जजमेंट है, फटाफट पढ़ डालोगे और आपको एक एक बात एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।